पा रहे हैं? Yes, Mataji can. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. I offer my humble pranams unto my Gurudev, unto Sri Gaurachandra and Sri Radha and Krishna. Please सब लोग म्यूट रखें. गौरचंद्र सब लोग म्यूट रखें प्लीज. सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता. O Srimad Bhagavatam, O nectar churned from the ocean of all the Vedic scriptures, O most prominent transcendental fruit of all the Vedas, O you who are enriched with the jewels of all spiritual philosophical conclusions, O you who grant spiritual vision to all the people of the world, O life breath of the Vaishnava devotees, O Lord, you are the sun which has arisen to dispel the darkness of the Kali Yuga. You are actually Krishna who has returned amongst us. परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे. मदेक बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महाधना मत्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंद नमोस्तुते. असाधु साधु त्यदायन अति नीचोचताकरा हाना मुंज कदाचिन्मां प्रेमना हृत्कंठयोस्फुरा. O Srimad Bhagavatam, I offer respectful obeisances unto you. By reading you, one attains transcendental bliss. For your syllables rain pure love of God upon the reader. You're always to be served by everyone, for you are an incarnation of Krishna. O Srimad Bhagavatam, O my only friend, O my companion, O my teacher, O my great wealth, O my deliverer, O my good fortune, O my bliss, I offer respectful obeisance unto you. O Srimad Bhagavatam, O giver of saintliness to the unsaintly, O uplifter of the very fallen, please do not ever leave me. Please become manifested upon my heart and my throat, accompanied by pure love of Krishna. So हम 3 बार ये चैंट करेंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. माता जी हम कौन से पेज पे हैं? अभी हम फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक ही कर रहे हैं. हमने थोड़ा कल पढ़ा था. आज हम म्यूट कर लीजिए सब लोग. संगीता खुराना प्लीज म्यूट कर लीजिए. तो एक बार फिर से ये श्लोक बोल देती हूँ मैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि.
Okay, विमला माता जी, हमने वैदिक यहाँ से पढ़ना था in the Vedic literatures. Yes, yes, Mataji. Hari Bol, in Vedic literatures. जी. In Vedic literatures, it is said that the absolute truth, personality of Godhead, is the chief amongst all living personalities. All living beings, beginning from the first created being, Brahma, down to the smallest ant, are individual living beings. And above Brahma, there are even other living beings with individual capacities. And the personality of Godhead is also a similar living being. And he is an individual, as are the other living beings. But the Supreme Lord or the Supreme Living Being has the greatest intelligence, and he possesses supermost inconceivable energies of all different varieties. So, Srila Prabhupada यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण जो एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है वो इंडिविजुअल है हमारी तरह. जैसे हम डिवोटीज से सुनते हैं, डिवोटीज कहते हैं कि जैसे आप रियल हैं, हम रियल हैं, वैसे कृष्णा भी रियल है. ही इज एन इंडिविजुअल, ही इज अ पर्सन, बट ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन. My voice is echoing. So, Yes. yeah. So, सो ब्रह्मा जी भी जैसे एक लिविंग एंटिटी है, वैसे भगवान भी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भी एक इंडिविजुअल पर्सन है. बट उनकी जो बुद्धि है, ही हैज द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस एंड ही हैज एनर्जीज जो हम समझ नहीं पाते, ऐसी इनकंसीवेबल एनर्जीज हैं. If a man's brain can produce a space satellite, one can very easily imagine how brains higher than man can produce similarly wonderful things which are far superior. The reasonable person will easily accept this argument, but there are stubborn atheists who would never agree. Srila Vyasadeva, however, at once accepts the supreme intelligence as Parameshwara. तो कुछ जो लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं कि ये सब अपने आप चल रहा है, प्रकृति अपने आप चल रही है. पर हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि कोई चीज बनानी होती है तो किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसकी बुद्धि की आवश्यकता होती है. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सृष्टि में जो चीजें इतनी सुचारू रूप से चल रही हैं, इतने सुंदर रूप से दे कंस्ट्रक्टेड और चल रही हैं इतने अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे स्टबर्न एथीस्ट, तो जिद्दी लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते, वो विश्वास नहीं करते इस बात पे. तो श्रीला व्यासदेव at once accepts the supreme intelligence as Parameshwara. हाँ, तो वो कहते हैं परमेश्वर जो परम ईश्वर भगवान जो हैं, वो ही उनके पास सुप्रीम बुद्धि है. He offers his respectful obeisances unto the supreme intelligence addressed as the Para or the Param Ishvara or the supreme personality of Godhead, and that Parameshwara is Sri Krishna, as admitted in Bhagavad Gita and other scriptures delivered by Sri Vyasadeva, and specifically in this Srimad Bhagavatam. In Bhagavad Gita, the Lord says, there is no other Paratattva Samam Bonam than himself. Therefore, Srila Vyasadeva at once worships the Paratattva Sri Krishna, whose transcendental activities are described in the 10th canto. तो सारे ग्रंथ हमने कल भी कुछ कवर किया था इसी कॉन्टेक्स्ट में कि भगवत गीता और सारे ग्रंथ जो हैं हमें क्लियरली बता रहे हैं कि श्री कृष्णा ही वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वो सुप्रीम पर्सन है. Unscrupulous persons go immediately to the 10th canto and especially to the 5 chapters which describe the Lord's Rasa dance. This portion of Srimad Bhagavatam is the most confidential part of this great literature. Unless one is thoroughly accomplished in the transcendental knowledge of the Lord, one is sure to misunderstand the Lord's worshipable transcendental pastimes called Rasa dance and his love affairs with the gopis. This subject matter is highly spiritual, and only the liberated persons who have gradually attained the stage of Paramhansa can transcendentally relish the Rasa dance.
तो जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि कुछ लोग जब भागवत सप्ताह वगैरह करते हैं तो वो केवल 10वें स्कंद को पढ़ते हैं, स्पेशली ये 5 अध्यायों को, जिसमें भगवान के जो इंटरेक्शंस हैं गोपीज के साथ रास रास विहार में, उनमें इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन जब तक हमने फर्स्ट 9 कैंटोस नहीं पढ़े हैं, हमें 10th कैंटो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले 9 कैंटोस पढ़ेंगे तो हमें कृष्ण की पोजीशन के बारे में पता लगेगा। तभी हम 10th कैंटो में होने वाली एक्टिविटीज को समझ पाएंगे इन दैट लाइट। तो ये जो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये सबसे कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर है भागवतम का, तो डायरेक्टली नहीं पढ़ना चाहिए हमें। और कौन इसको पढ़ सकता है, कौन इसको समझ सकता है, परमहंस के स्टेज में जो है ना। So Srila Vyasadeva therefore gives the reader the chance to gradually develop spiritual realization before actually relishing the essence of the pastimes of the Lord. Therefore तो पहले हम 9 स्कंद पढ़ेंगे और भगवान की पोजीशन को, क्या क्या तत्व है भगवान का, क्या तत्व है उसको समझेंगे, और तभी हम उनके पास टाइम्स को समझ पाएंगे। नहीं तो हमें लगेगा कि ये कोई लड़का और लड़की की कहानी है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम फर्स्ट 9 कैंटोस पढ़ें। Therefore, he purposely invokes a Gayatri mantra, Dhimahi. This Gayatri mantra is meant for spiritually advanced people. When one is successful in chanting the Gayatri mantra, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must therefore acquire Brahmanical qualities or be perfectly situated in the quality of goodness in order to chant the Gayatri mantra successfully, and then attain to the stage of transcendently realizing the Lord, His name, His fame, His qualities, and so on. तो जब जैसे लोगों को ये विचार रहता है कि गायत्री मंत्र कोई भी जप कर सकता है, पर शास्त्र में बताते हैं कि जो गायत्री मंत्र होता है, स्पेशली यू नीड कुछ हमारा स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन हो जाना चाहिए, तभी हम गायत्री मंत्र चैंट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो गायत्री मंत्र को अच्छे से चैंट करता है वो भगवान की ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, यानी जो गुणातीत पोजीशन है भगवान की, उसको उस तक पहुंच सकता है ना। तो हमें पहले ब्राह्मणों के गुण डेवलप करने चाहिए, फिर हम गायत्री मंत्र को चैंट करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। Srimad Bhagavatam is the narration of the Swarupa of the Lord, manifested by his internal potency, and this potency is distinguished from the external potency which is manifested in the cosmic world, which is within our experience. Srila Vyasadeva makes a clear distinction between the two in the shloka. Srila Vyasadeva says herein that the manifested internal potency is real, whereas the external manifested energy in the form of material existence is only temporary and illusory, like the mirage in the desert. So, भगवान की एनर्जीज को वैसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अनेक एनर्जीज हैं, पर ब्रॉड कैटेगरीज में इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी में डिवाइड किया गया है। तो भगवान की जो इंटरनल एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो धाम में, जैसे गोलोक वृंदावन धाम है या वैकुंठ धाम में है, उनमें काम करती है ना। और जो भौतिक एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी, माया, वो भौतिक जगत में काम करती है। एक्चुअली दोनों में कुछ फर्क नहीं है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग अलग है, इसलिए उनको एक्सटर्नल और इंटरनल बोला जा रहा है। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो जहाँ उसका जो ज्यूरिस्डिक्शन है, मटेरियल वर्ल्ड में जो ज्यूरिस्डिक्शन है, हाँ, उसका इफेक्ट क्या रहता है, जो भी चीज है वहां पे टेम्पररी है। आप देखो मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी चीज आप सोचो, आज एक सुंदर आपने कोई चीज खरीदी, और क्या वो हमेशा वैसी रहेगी? ऑब्वियसली नॉट, है ना। इट विल उसका क्षय होगा ही होगा, है ना। हम अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल या कुछ भी खरीदते हैं, इनफैक्ट अपने शरीर को भी बहुत अच्छे से सजाते हैं, पर क्षय होगा ही होगा, उसका डाउन जाएगा ही जाएगा, है ना। तो सो ये जो सारा का सारा जो हम मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं, ये टेम्पररी है और इल्यूजरी है। इल्यूजरी इसलिए है कि हम इसको समझते हैं कि ये परमानेंट है, इसलिए इसको इल्यूजरी बताया गया। तो यहाँ पे Prabhupada is further explaining that
जैसे मिराज है, कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे मिराज है डेजर्ट में, वैसा है माया का जो जगत है। इन द डेजर्ट मिराज, in the desert mirage there is no actual water, but there is only appearance of water. Real water is somewhere else. The manifested cosmic creation appears as reality, but reality of which this is but a shadow is in the spiritual world. तो जैसे हम मिराज में पानी देखते हैं, तो ऑब्वियसली मिराज के अंदर पानी तो नहीं है, पर कहीं तो पानी है ना, है कि नहीं? कहीं तो पानी है कि नहीं? सब लोगों ने वीडियोस ऑफ किए हुए हैं, आई कांट सी मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके संगीता, है कि नहीं? पानी तो है ना, पानी एग्जिस्ट करता है ना समवेयर। सो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो चीज को हम रियलिटी समझते हैं, हमारे कुछ लोगों से हम वात्सल्य रूप से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, वात्सल्य प्रेम रखते हैं, कुछ लोगों से साख्य भाव का प्रेम रखते हैं, कुछ लोगों से माधुर्य भाव का प्रेम रखते हैं। ये सारा का सारा कहीं तो है, यहाँ पर तो इल्यूजरी है, पर कहीं तो है ना इसकी सच्चाई। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सच्चाई है और यहाँ पर उसकी शैडो है ना। तो अगर हम जैसे सपोज प्रसाद की थाली है, उसमें बहुत सुंदर व्यंजन है और आपको बहुत भूख लगी है, और मैं आपको प्रसाद की थाली की छाया दिखा दूं, उसमें गुलाब जामुन की, रसगुल्ले की, सबकी छाया दिखा दूं, तो क्या आप तुष्ट हो जाओगे? नहीं, है ना। तो हमें ये जानना है कि स्पिरिचुअल रियलिटी एग्जिस्ट समवेयर एल्स, है ना। यहाँ पर केवल उसका प्रतिबिंब जैसा है, शैडो है यहाँ पे। सो absolute truth is in the spiritual sky, not in the material sky. In the material sky, everything is relative truth. That is to say, one truth depends on something else. This cosmic creation results from interaction of the three modes of material nature, and the temporary manifestations are so created as to present an illusion of reality to the bewildered mind of the conditioned soul, who appears in so many species of life, including the higher demigods like Brahma, Indra, Chandra, and so on. In actuality, there is no reality in the manifested world. There appears to be reality, however, because of the true reality which exists in the spiritual world, where the personality of Godhead eternally exists with his transcendental paraphernalia. So, यहाँ पर जो भी चीजें हैं प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, वो relative truth है, absolute truth नहीं है ना। relative truth क्यों है? Because it is dependent on something. It is dependent on time, for instance. एंड जैसे अभी हमने बात किया कि एक चीज हमारे पास अच्छी है, पर वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्षय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये एक, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे अगर हम मूवी हॉल में जाते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, सब कुछ अंधेरा कर दिया जाता है, और फिर स्क्रीन पे जो मूवी चल रही होती है, हमें लगता है कि वो, हम उसको देखना शुरू करते हैं और उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। उसमें सपोज किसी हीरो की मृत्यु हो जाए या कुछ अच्छे पात्र की मृत्यु हो जाए, तो हमें रोना भी आ जाता है, हम रो लेते हैं, है ना। उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो रो लेते हैं, तो हम इतना एंगेज हो जाते हैं, हम सोचते हैं वी आर पार्ट ऑफ दैट मूवी, है ना। लेकिन जब लाइट ऑन हो जाती है तो हमें पता लगता है, अरे दिस वाज जस्ट अ मूवी, यू नो, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। सो अभी जो हमारी लाइफ में हम जिसको रियलिटी समझ रहे हैं, actually it's just a movie, है ना, it's just a drama that is happening. Because of our karma, हम इस सिचुएशन में हम ये पर्टिकुलर मूवी देख रहे हैं जिसमें हम एंगेज्ड हैं। बट अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पेशली श्रीमद् भागवतम की कृपा से जो अभिन्न है कृष्ण से, अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ के हमारे जो हृदय साफ हो जाएगा, तब हम ये देख पाएंगे कि मैं इस मूवी का दृष्टा हूं, इसको मैं देख रहा हूं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द मूवी। तो क्या होगा, हम सारी सिचुएशन से डिटैच हो जाएंगे और हमें ये पता लगेगा कि एब्सोल्यूट ट्रुथ तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। जो रिलेशनशिप्स, जो लव या जो सिचुएशंस, परमानेंट हैप्पी सिचुएशंस जो मैं ढूंढ रही हूँ, वो यहाँ है ही नहीं, केवल उसकी छाया है। छाया कैसे है? क्योंकि मुझे जैसे I don't want to die, nobody wants to die, they don't even want to talk about death, because death is so unreal to the soul. Soul never dies. So that is how the
thought of death is very, very scary for the soul. But the body has to die. So अगर आप जैसे material world में आएंगे तो आपको ये पहनना पड़ेगा, ये वाला शरीर पहनना ही पड़ेगा, और ये हमेशा last नहीं करेगा, है ना? तो when we get out of this illusion, when we situate ourselves in pure Krishna consciousness, and we हम फिर दृष्टा बन जाते हैं, है ना? We can see that this illusion is not me. You know, I am a part and parcel of Krishna, and somehow or the other, I need to start serving Krishna, and then everything will be okay. The chief engineer of a complicated construction does not personally take part in the construction, but he knows every nook and corner because everything is done under his direction. He knows everything about the construction, both directly and indirectly. Sangeeta Singhal, can you read this further? I'm feeling a bit thirsty. Okay, the chief engineer of a complicated construction doesn't personally take part in the construction, but he knows every nook and corner because everything is done under his direction. He knows everything about the construction, both directly and indirectly. Similarly, the personality of Godhead, who is supreme engineer of this cosmic creation, knows every nook and corner. Although affairs are being carried out by demigods, beginning from Brahma down to the insignificant ant, no one is independent in this material creation. The hand of the Lord is seen everywhere. All material elements, as well as all spiritual sparks, emanate from Him only. And whatever is created in this material world is but the interaction of two energies, the material and the spiritual, Yeah, which emanate. We'll just pause Yeah, here. sure. तो जैसे एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी बिल्डिंग का, और उसका जो चीफ इंजीनियर है, वो ऑल्दो पूरा प्लान बनाता है और सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली वो इन्वॉल्व ना हो कंस्ट्रक्शन में, डे टू डे की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, बट सब कुछ उसके डायरेक्शन में हो रहा है, उसको सब पता है. जैसे हमने भागवतम के श्लोक में पढ़ा कि भगवान जो है रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन के, हाँ, मेंटेनेंस के और डिस्ट्रक्शन के. हो सकता है पर्सनली नहीं कर रहे हैं भगवान, लेकिन उनको सब कुछ पता है, अभिज्ञ है वो, अभिज्ञ स्वराट जो हमने पढ़ा था श्लोक में. तो अलग अलग एजेंट्स हैं, सारे बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए. प्राइम मिनिस्टर सारा काम नहीं करता है, but there is a head of the government. Similarly, यूनिवर्सल गवर्नमेंट का भी एक हेड है, और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग, जैसे वायुदेव हैं वो विंड को देखते हैं, वरुण देव हैं वाटर को देखते हैं, वाटर डिपार्टमेंट देखते हैं, यमराज हैं जो जेल डिपार्टमेंट देखते हैं, पनिशमेंट का डिपार्टमेंट देखते हैं. तो ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, बट सारे के सारे ये मान लीजिए कि सारे के सारे किसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सुप्रीम पर्सन के, है ना. जैसे किसी गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उसी तरीके से सारे के सारे डेमिगॉड्स जो हैं, दे रिपोर्टिंग इनटू लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा, एंड एक्टिंग एज पर हिज डायरेक्शन. द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज सीन एवरीवेयर. तो भगवान का हाथ हम हर जगह देख सकते हैं. ओके, please continue. Okay, the hand of the Lord is seen everywhere. All material elements as well as all spiritual sparks emanate from Him only. And whatever is created in this material world is but the interaction of two energies, the material and the spiritual, which emanate from the absolute truth, the personality of Godhead, Shri Krishna. A chemist can manufacture water in the chemical laboratory by mixing hydrogen and oxygen. But in reality, the living entity works in the laboratory under the direction of Supreme Lord. And the materials with which he works are also supplied by the Lord. The Lord knows everything directly and indirectly, and he is cognizant of all minute details, and he is fully independent. He is compared to a mine of gold, and the cosmic creations in so many different forms are compared to the objects made from the gold, such as gold rings, necklaces, and so on. The gold ring and the gold necklace are qualitatively one with the gold in the mine,
but quantitatively, the gold in the mind is different. Therefore, the absolute truth is simultaneously one and different. Nothing is absolutely equal with the absolute truth. But at the same time, nothing is independent of the absolute truth. Yes. So, भौतिक जगत में एक्चुअली सभी कुछ मटेरियल है. भौतिक जगत है तो सब कुछ भौतिक ही होगा, लेकिन एक चीज स्पिरिचुअल है जिसकी वजह से भौतिक जगत चल रहा है ना? वो क्या है? क्या है अचला माता जी? सोल. यस, सोल, है ना? अगर जैसे मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ या टेबल पे बैठी हूँ, वो टेबल अगर कोई हिलाए नहीं तो वो कई कई साल तक उसी जगह पड़ी रहेगी, है ना? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है. तो मैटर को चलाने के लिए आत्मा की आवश्यकता है. सो दो एनर्जीज, मटेरियल और स्पिरिचुअल के इंटरैक्शन से ही ये सारा जगत चल रहा है ना? अदरवाइज इट इज जस्ट डेड. हाँ. सो जैसे प्रॉपर एग्जांपल दे रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाया जा सकता है. हाँ. बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका है? इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड. हम बोल सकते हैं कि हमने देखो वाटर बना दिया, हाँ, बट it is the ingredients belong to Krishna. So everything is supplied by God. So and likewise he is, because जैसे हमने कल पढ़ा था, उनका नाम है, एक और नाम है, उनका नाम है वासुदेव. वासुदेव मतलब he pervades everything. हर कण में, हर कण में वास है भगवान का, हर एटम में. क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वो हर कण में रहते हैं, हर व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं. सो इसलिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबके मन में क्या चल रहा है. इनफैक्ट बताया जाता है कि जैसे 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 ही हमारे हृदय में कोई विचार उत्पन्न होता है या कोई डिजायर आता है, तो तुरंत जैसे हवा की खुशबू हवा रोजेस के ऊपर से जा रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी नाक में खुशबू आ जाती है. तो उसी प्रकार से भगवान को हमारे भगवान जो क्षीरोदक्षा विष्णु के हृदय में बैठे हैं, उनको हमारी सब इच्छाओं को उनको पता लग जाता है ना? सो ही इज अभिज्ञ, ही नोज एवरीथिंग. हाँ. एंड देन स्वराट, he is independent. And then यहाँ पे प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो भगवान से ही आ रहे हैं, बट वो बहुत ही छोटी मात्रा में हमारे अंदर है. जैसे गोल्ड माइन है. गोल्ड माइन मतलब खान है गोल्ड की, बहुत सारी क्वांटिटी है गोल्ड की. और गोल्ड रिंग्स हैं, गोल्ड नेकलेसेस हैं, या जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, तो किसी भी ऑर्नामेंट में कम क्वालिटी है गोल्ड की. गोल्ड माइन तो गोल्ड का, सोने की खान है ना? तो उसी प्रकार से भगवान और हमारी क्वालिटी सेम है, लेकिन फर्क यही है कि वी हैव वेरी लिटिल क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग कॉल्ड. सो वी विल जस्ट मार्क इट हियर. कंडीशन सोल से कल पढ़ लेंगे, ठीक है? आई थिंक इट्स 45 नाउ, सो वी जस्ट स्टॉप शेयर नाउ. Okay, anybody has any question? Yes, Sangeeta. You said that there are three energies mainly. So one is material energy of the Lord, and the one is internal energy of the spiritual energy of the Lord. What is the third one? Third one is marginal energy, ya tatastha shakti. Marginal energy is between the external and the internal energy, and that is us, the living entities. Okay. That's marginal energy. Okay, I'm so happy to see Kirti. She's at work right now. Happy to see you. I could not sleep last night. I read the entire thing till where you took, and I read the further paras which we had to discuss. That's why I did not want to miss on the class today. Wow, that's so nice. You're so sincere. Srimad Bhagavatam is very attractive.